students. I hope all of you are fine at your home. We are doing our chapter number 10, that is gravitation. Up to now we have discussed about the gravitation, gravity, universal law of gravitation and applications of universal law of gravitation. Today we will do free fall. Now what do we mean by free fall? When an object is dropped from some height, it falls down to the earth due to the force of attraction of the earth, that is called gravity. Now, what is free fall? When objects fall towards the earth under the force of gravity alone, we say that objects are in free fall. जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरती है केवल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइंग ऑन इट, देन वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट्स आर इन फ्री फॉल. जब ऑब्जेक्ट ऊपर से अपने आप गिर रही है, उसके ऊपर कोई और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा कोई भी, तो उसको हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट किस में है, फ्री फॉल में है. ठीक है, एंड दैट इज due to the earth's attraction or earth's gravitational force called gravity. When object is dropped from some height, its velocity increases at a constant rate. जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरती है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, बट इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस. उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी. जैसे जैसे अर्थ के नजदीक आती जाएगी, उसकी वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज होती जाएगी at a constant rate uniformly. The uniform acceleration is produced in free falling body. अब velocity change हो रही है, ठीक है, increase हो रही है, इसका मतलब acceleration produce हो रहा है उसमें. तो the uniform acceleration is produced in free falling body due to the gravitational force of the earth. इस gravitational force of the earth की वजह से जो acceleration है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वो प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज हो रही है. मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन. एंड जो वो एक्सेलरेट हो रही है बॉडी, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसमें, उसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल जी से. पहले आपने कैपिटल जी पढ़ा था, ठीक है, जिसकी वैल्यू थी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. वो था आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. और ये स्मॉल जी है, वो कैपिटल जी था, ये स्मॉल जी है. ये स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हुआ है किसी ऑब्जेक्ट में, जब ऑब्जेक्ट नीचे आती है, फॉल करती है जमीन पे, वो एक्सेलरेशन. ठीक है, और उस पर कोई और एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम कर रही, सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट में वो नीचे आ रही है, उसको हम कहेंगे फ्री फॉल. और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इसकी वैल्यू आगे हम फाइंड आउट करेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी. द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, इट डू नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता. एंड इट वाज फाउंड दैट व्हेन ए हैवी ऑब्जेक्ट एंड ए लाइटर ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ और फ्रॉम सम हाइट, देन it is assumed that the heavy object it falls first than the lighter object. But later on this was proved wrong by Galileo. He take two stones of different masses and throw from the Leaning Tower of Pisa, and it was found that both the stones, they are attracted by the earth's gravitational force and they landed on the earth at the same time. Means they have same acceleration in them. And if you drop, like if you drop a feather and a stone from the roof of a house,
then the stone comes first and the feather that comes later. Why? Because according to this acceleration due to gravity, they must come at the same time, but feather comes after some time and stone reaches before the feather. Why? Because this feather, it is having less mass and its surface area is more than its mass. Then it experiences a force of friction, resistance from the air, force of resistance from upward force from the air. Then its speed or its acceleration is reduced. In case of stone, there is less force of that resistance is less because it is having more mass and less surface area, so it is experiencing the less resistance of the air. That's why it reaches first on the land or on the earth and feather comes later. Now if we create vacuum there, if we throw both of these things, the feather and the stone, in vacuum, then they will come at the same time. They will accelerate at the same rate and come at the same time. Okay, so that is called acceleration due to gravity. यहाँ पे हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे एक मास हमने लिया, एक स्टोन है, उसका मास है 2 kg, और हमारा कॉटन है, कॉटन 2 kg कॉटन हमने ली, 2 kg का स्टोन हमने लिया और हमने उसको ऊपर से रूप से उसको नीचे फेंका, तो कौन सी चीज पहले आएगी? ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फ्री फॉल, they will come down at the same rate or they will come at the same time. Okay, but the stone that reaches first, because अब 2 kg जो मास है कॉटन का, 2 kg कॉटन का जो मास है, अब 2 kg कॉटन जो है उसका जो सरफेस एरिया है वो क्या होगा? वो ज़्यादा हो जाएगा। सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से जो अपवर्ड फोर्स रेजिस्टेंस ऑफ द एयर जो लग रहा है वो ज़्यादा एरिया पे लगेगा और उसके मोशन को हिंडर करेगा, रुकावट पैदा करेगा। ठीक है, और जो मास है स्टोन का, ठीक है, वो 2 kg है, उसका सरफेस एरिया क्या है? वो कम है, तो एयर का जो रेजिस्टेंस है वो कम लगेगा। एयर का रेजिस्टेंस कम लगने की वजह से वो नीचे जल्दी आएगा। ठीक है, अगर हम वैक्यूम क्रिएट कर दें, वैक्यूम के अंदर हम उसको नीचे डालें, वहाँ पे वैक्यूम हो, तो दे बोथ कम एट द सेम रेट और एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट था वो एयर का रेजिस्टेंस इस पे डिपेंड करता है, एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये चीजें अगर हम हटा दें, एयर रेजिस्टेंस या कोई और एक्सटर्नल फोर्स जो होती है, अगर वो सारी चीजें हटा दें, देन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फिर एक्सेलरेशन जो है वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करेगा, एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स दे कम और एक्सेलरेट एट द सेम रेट। नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज स्मॉल g। इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगी? देखिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स on the surface of the earth, or we can say that when object is dropped from a height, then earth pulls it towards itself, and the force it experiences is equal to g, that is gravitational constant, m mass of the earth and m mass of the object by r square. F is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. ठीक है, ये इक्वेशन सपोज वन फर्स्ट इक्वेशन होगी। फर्स्ट इक्वेशन इट इज फोर्स gmm by r square अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और हमने देखा कि F इज इक्वल टू
मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है, ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको मैं चेंज करके इस एक्सेलरेशन को m इंटू जी कर देता हूँ, ठीक है, मास इनटू acceleration, here acceleration is acceleration due to gravity, that is g. This is equation second, equating first and second। ये भी फोर्स की वैल्यू है, ये भी फोर्स की वैल्यू है। F इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, F इज इक्वल टू एम इंटू जी, दोनों को इक्वल रख सकते हैं क्योंकि दोनों फोर्स हैं। तो 1 and 2 को इक्वल रखेंगे, that will become equating 1 and 2 m इंटू जी, एक तरफ ये रख लिया हमने, दूसरा हो गया जी एम एम बाय आर स्क्वायर, ये कैंसिल। देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, हमने जी चाहिए हमें जी, तो जी को इधर रखेंगे, ठीक है, इस जी की वैल्यू हमें निकालनी है, इसको इधर रखेंगे तो ये हो जाएगा जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और ये जो m है ये इधर नीचे आ जाएगा m, इस m से ये m कैंसिल, तो g की जो वैल्यू आई आपकी वो आ जाएगी g इज इक्वल टू कैपिटल G m बाय आर स्क्वायर। ये आ गई आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला। अब इनके वैल्यू अगर हम पुट करें तो g क्या आएगा, g इज इक्वल टू कैपिटल G की वैल्यू आपको पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास ऑफ द अर्थ वो है आपका ये 6 इंटू 10⁻24 केजी। नाउ रेडियस ऑफ द अर्थ दैट इज 6.4 into 10⁻6 and its square, and if we calculate all this then its value is 9.8 meter per second square. This is the experimentally calculated value of acceleration due to gravity। जब हम न्यूमेरिकल निकाल लेंगे तो उसमें वैल्यू 9.8, और हम राउंड ऑफ करने के लिए 10 भी ले सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ देखिए इस फॉर्मूले से आपको पता चल रहा है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, वही हमने पीछे पढ़ा था कि मास पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए किसी भी मास की ऑब्जेक्ट है दे विल एक्सेलरेट एट द सेम रेट टुवर्ड्स द अर्थ एंड दे विल फॉल एट द सेम टाइम इन ए फ्री फॉल इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन देम। ओके, so this is value of g, that is 9.8 meter per second square, and this g is acceleration due to gravity. When a body is dropped freely it falls with a acceleration of 9.8 meter per second square। अभी हमने पढ़ा कि जब एक बॉडी को फ्रीली हम ड्रॉप करते हैं तो वो फॉल करती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, इतने एक्सेलरेशन से। एंड व्हेन इट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकेंगे देन इट अंडरगोज रिटार्डेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसमें क्या होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, क्योंकि अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया। सो द वेलोसिटी विल डिक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रेट से। और कब तक डिक्रीज होगी, इट रीचेज अंटिल इट रीचेज टू जीरो, जब तक वो जीरो नहीं हो जाती, क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो कहीं ना कहीं जाके वो रुकेगी और वहां पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। और किस एक्सेलरेशन से डिक्रीज हो रही है, 9.8 मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर के रेट से। ठीक है, नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ जी इज नॉट कांस्टेंट एट ऑल प्लेसेस। सभी जगह पे जो जी की वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं है। अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू हर जगह कांस्टेंट नहीं है, एक जैसी नहीं है, बिकॉज अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर। एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है वो, बिकॉज वैल्यू ऑफ आर इज नॉट सेम एट ऑल प्लेसेस। अगर देखो आर की वैल्यू चेंज होगी तो देखो जी की वैल्यू जो है वो भी चेंज होगी। तो हमारा जो रेडियस है वो अर्थ सरफेस पे एक जैसा नहीं है हर जगह, इसीलिए जो जी की वैल्यू है वो सरफेस के अकॉर्डिंग चेंज होती है, और या हम कह सकते हैं कि रेडियस के अकॉर्डिंग वो चेंज हो रही है। द रेडियस ऑफ द अर्थ एट पोल्स इज मिनिमम। जो पोल्स है हमारे उन पे जो रेडियस है वो क्या है, वो मिनिमम है, यानी कि आर की वैल्यू जो है वो कम है। द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट द पोल्स। अगर आर की वैल्यू कम है तो जी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, ऑब्वियसली, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेडियस की वैल्यू अगर कम होगी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो आपकी ज्यादा होगी। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे जो है वो रेडियस जो है वो ज्यादा है। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम। अगर यहाँ पे ज्यादा आया तो ये क्या होगा, मिनिमम होगी। तो इक्वेटर पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है या जी की वैल्यू है वो आपकी क्या होगी, वहां पे मिनिमम होगी, क्योंकि रेडियस वहां पे ज्यादा होगा। और पोल्स पे जो जी की वैल्यू है वो आपकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि रेडियस कम होगा। एज बोथ जी एंड आर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एज वी गो अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ द डिस्टेंस इंक्रीजेस। जैसे जैसे सरफेस ऑफ द अर्थ से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, तो क्या इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज हो मीन्स रेडियस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर रेडियस इंक्रीज होगा तो जी की वैल्यू, अगर यहाँ पे रेडियस इंक्रीज होगा तो जी की वैल्यू क्या करेगी, इट विल डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट थे रिगार्डिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।